یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور ہمارے بزرگ جالندھر سے ہجرت کر کے سرزمین پاک آ گئے۔ پہلے لاہور مہاجر کیمپ میں ٹھہرائے گئے، بعد ازیں ہمارے نانا اور والد صاحب کو 2 مکان فیصل آباد میں الاٹ ہو گئے۔ نانا اور ابو کا جو تھوڑا بہت سرمایہ تھا جالندھر میں رہ گیا اور اب نئے سرے سے زندگی کے سفر کو جاری و ساری رکھنے کی خاطر کوشش کرنی تھی۔ ہندوستان میں نانا ریلوے میں ملازم تھے۔ کچھ تگ و دو کے بعد پاکستان ریلوے میں ملازمت مل گئی اور زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی سے چل پڑی۔ والد صاحب بے روزگار تھے، کچھ عرصہ بعد نانا کی کوششوں سے ان کو بھی ریلوے میں ملازمت مل گئی تو ہمیں بھی سکھ چین سے روٹی میسر آنے لگی۔ بہت زیادہ خوشحالی نہ سہی، اب گزر بسر تو عزت سے ہو رہی تھی۔ ان دنوں میں 10 برس کی اور چھوٹے 2 بھائی بہن تھے۔ کنبہ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن 2 بن بیاہی پھوپھیاں ساتھ رہتی تھی۔ یہ جھگڑالو قسم کی تھی، میری والدہ سے گھریلو کام کاج پر جھگڑا کرتے۔ دادی بیٹیوں کی طرفداری میں بہو کو مورد الزام ٹھہراتی، تبھی میری ماں کا دل افسردہ رہتا تھا۔ دراصل پھوپھیاں چاہتی تھیں کہ گھر کا تمام کام امی کرے، جبکہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ انہی حالات میں میرے بھائی رمیز نے جنم لیا۔ امی نے اسے نانی جان کو دے دیا اور کہا کہ آپ پرورش کریں، مجھے تو گھر کے کام سے ہی فرصت نہیں، بچے کو کیسے پالوں گی۔ یہ قدم انہوں نے نندوں کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے اٹھایا تھا۔ نانی کا گھر ہمارے مکان سے متصل تھا۔ والدہ ننی کی دیکھ بھال کر لیتی تھی کیونکہ نانا کے مکان کے بیچ ایک دیوار تھی جس میں دروازہ بنا لیا تھا۔ گھر کے اندر سے ہی ان کے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ نعمانی نیک خاتون تھی، ننھے رمیز کی پرورش میں اپنی ساس کی مددگار ہو گئی۔ یوں میرے نومولود بھائی کی پرورش نانی کی گود میں بہت اچھے طریقے سے ہونے لگی، خاص طور پر نانی اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ کچھ سال بعد ماموں کی ترقی ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ پرانے گھر کو ٹھیک کرا لوں۔ یہ ایک ہندو کا مکان تھا جو نانا کو الاٹ ہوا تھا اور یہ خاندان قیام پاکستان کے وقت بھارت ہجرت کر گیا تھا۔ مکان کا فرش اب خاصا خراب ہو چکا تھا، در و دیوار گرچہ مضبوط بنائے گئے تھے، تاہم پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور مرمت کی حاجت تھی۔ نانا جان ریٹائر ہو چکے بڑھئے تھے، انہوں نے اپنی نگرانی میں کام شروع کرا دیا۔ جب نانا کے کمرے کی دیواروں کا پلستر جو کہ بوسیدہ ہو رہا تھا اکھاڑا گیا تو دیوار کے اندر کچھ دفن محسوس ہوا۔ دراصل یہ ایک تجوری تھی جس کو دیوار میں چن کر اوپر سے پلستر کر دیا گیا تھا۔ پرانا پلستر اترتے ہی لوہے کی الماری نما تجوری برآمد ہو گئی جو بہت مضبوط تھی اور اس کا کھولنا آسان نہ تھا، لیکن کام کتنا ہی مشکل ہو ہمت سے بالآخر تکمیل پا جاتا ہے۔ بہرحال نانا تجوری کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ تجوری کے اندر سونے چاندی کے زیورات، اشرفیاں، جواہر اور ہیرے موتی غرض ہجرت کر جانے والے خاندان کا کل اثاثہ رکھا تھا۔ وہ اس خیال سے اسے دیوار میں چین گئے تھے کہ شاید کبھی واپس آنا ہوگا تو اپنا مال نکال لیں گے، لیکن یہ ان کی قسمت میں نہ تھا، بلکہ یہ مال غنیمت میرے نانا کی قسمت میں لکھا تھا جو ان کو گھر بیٹھے مل گیا۔ کہتے ہیں اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ نانا تو اپنی قسمت پر نازاں تھے۔ انہوں نے اس بارے میں کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ میرے والدین کو بھی نہیں، سوائے ماموں کے جوان کے بیٹے تھے۔ اب میرے سفید پوش نانا کروڑ پتی تھے،
मगर तर जिंदगी में तब्दीली नहीं ला रहे थे। कहीं किसी को शक ना हो जाए कि वो बैठे बिठाए अमीर कबीर कैसे हो गए। जाहिर है इंसान के दोस्त कम और हासिद ज्यादा होते हैं। अगर किसी को मुफ्त का खजाना मिल जाए तो उसकी जान के दर पे भी हो जाते हैं। नाना की शराफत पर किसी को शुबा न था। इसी बना पर बेटी का रिश्ता एक अच्छे खानदान से आ गया। उन्होंने जाहिदा खाला को आला जहेज दिया। यूं कहना चाहिए कि सोने चांदी में तोल कर रुखसत किया और आलीशान तरीका से शादी की। तभी लोगों की निगाहें खीरा हो गई। अब सभी के लबों पर ये अल्फाज थे कि भाई ये तो खानदानी रईस मालूम होते हैं। शायद कि किसी महफूज तरीका से अपना ज़रो असासा मुंतकिल करवाया होगा, लेकिन पोशीदा रखा और खुद को सफ़ेद पोश ज़ोएं और सफ़ेद पोश जाहिर करने की खातिर सादगी से ज़िंदगी बसर करते रहे। लेकिन दौलत के तो पर होते हैं, ये छुपाए नहीं छपती। लिहाजा खानदान निदान वालों पर बहुत जल्द उनकी की अमीरी जाहिर हो गई। नाना के घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। वो कहते थे कि रमीज की किस्मत से मुझे इतनी दौलत मिली है कि अब सारा खानदान बैठकर खाए तो भी उम्र भी खत्म ना होगी। रमीज की पैदाइश के 2 बरस बाद मुमानी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रबिया रखा गया। दोनों बच्चों की परवरिश मुमानी ने नाजो नाम से की और जवान होने तक रमीज उन्हीं के पास रहा। इनसे जो लाड प्यार मिला वही इसकी और पूरे खानदान की तबाही का बाइस बना। रमीज की उम्र 20 बरस होगी जब नाना और फिर नानी वफात पा गए। उनकी वफात के बाद उम्मी जान को भी नाना की वसीयत के मुताबिक तरके में से काफ़ी रकम मिली। ये दौलत किया आई तबाही ने हमारे घर में कदम जमा लिए। पहले जो रिश्तेदार मोहब्बत से मिलते थे अब कुछ खुशामदी बने और कुछ हमारे दुश्मन हो गए। जब तक प्योहे की शादियां ना हो गई उन्होंने उम्मी को जिंदा दर गो रखा। बाद में रुपए पे दर गो रखा। बाद में रुपए पैसे की खातिर अबू ने मेरी वालिदा को सताना शुरू कर दिया। दौलत तो मेरी माँ को नाना की वसीयत के मुताबिक मामू से मिली, लेकिन घुमंडा बोको हो गया। उन्होंने अच्छी भली नौकरी को खैर आबाद कह दिया और घर बैठ रहे कि घर में पड़े दाने तो बिला जाए खाने। कहते हैं कि कमाने से जी चराऊ तो कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। जिन दिनों में बीए के आखिरी साल में थी हमारे माशी हालात खराब होना शुरू हो गए। वालिद साहब ने लड़ झगड़ कर उम्मी के नाम का रुपया अपनी तहवील में किया लिया कि फिरले तुल्लू में रुपया उड़ाने लगे। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया जब वो खाली जेब रह गए। घर के हालात देखकर मैं वालिदा से ज्यादा मुतफक्किर रहने लगी। वालिदा के जेवरात सब कुत्ते तो घर का खर्चा चलता। ऐसे में दिल एहसासात की आग में जल रहा था। अब भी उम्मी ने हिम्मत की और घर के अखराजात पर कंट्रोल किया। बीए के बाद मैंने बीएड में दाखिला लिया और फिर मुलाजमत मिल गई। क्योंकि रमीज से तो कोई उम्मीद न थी और मेरे बाद के भाई अजीज का यह हाल था कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और मामूली नौकरी ढूंढने के चक्कर में रहने लगा था। छोटी बहन शाबानो स्कूल जा रही थी क्योंकि वो भी आने वाले हालात की संगीनी का एहसास कर चुकी थी। रमीज के लाद उठाने वाले दुनिया में ना रहे तो मामू ने से कुछ काम करने को कहा। वो बरमान कर हमारे पास आ गया। वालिदा भी चाहती थी कि वो उनके पास आ जाए क्योंकि मामू की बेटी रबिया जवान हो चुकी थी। रिश्तेदार बातें बनाने लगे थे और ये बात मुमानी के लिए बाइस परेशानी थी। हम तो खुश थे कि हमारा भाई मुस्तकिल आ गया है।
क्या जानते थे कि इस भाई के रूप में तबाही ने हमारे घर में कदम जमा लिए हैं। अब पता चला कि नाना और नानी के लाड प्यार ने इसे कहीं का नहीं रखा। गलत सोसाइटी। ओ बाश दोस्त, नाना नानी के होते नोटों से जेबें भरी होती थी। जो नहीं मामू मानी ने जरा सा रोए बदला, वो झगड़ालू मिजाज हो गया। अब उन्हीं का दुश्मन था जिन्होंने खून पसीना एक करके परवान चढ़ाया था और मुफ्त की दौलत से ऐश कराया, शहजादों की मानंद रखा। नानी तो इस पर हजारों लिटा देती थी। मामू मानी ने हाथ रोक लिया तो और मेज अम्मी अबू से वही ऐश चाहने लगा। यहां से तो दौलत रुखसत हो चुकी थी, इनमें से कैसे ऐश कराते। रूखी सूखी देखकर इसका मिजाज बिगड़ जाता, ऐसे चीखता चलाता कि सारा घर कांप उठता। दौलत का मजा इसके मुंह को लग चुका था और अब गोश्त खोर चीता घास नहीं खा सकता था। रमीज की बदतमीजियां रिश्तेदारों को नागवार गुजरने लगी। सब जानते थे ये नाना की दौलत से हिस्सा पाएगा, तभी हर रिश्तेदार अपनी लड़की रमीज के पहले बांधने पर तैयार था। खानदान की अक्सर लड़कियां उसके करीब आ गई थीं। जब वो मामू के घर को छोड़कर आ गया तो ये लोग चूकने हो गए। सोचा क्या खबर मामू आइंदा उसे कुछ दे ना दे, वो अज खुद दूरी इख्तियार करने लगे। ताहम रमीज उनकी लड़कियों से अभी तक नाता जोड़े था और वो भी छप छप कर मेरे भाई से मुलाकातें जारी रखी थी। मुझे अचानक ही ये जानकर सदमा हुआ कि मेरे भाई ने उन लड़कियों के ऐसे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं कि अगर ब्लैकमेल करना चाहे तो मिनटों में कई घरानों की इज्जत नीलाम हो सकती थी। अजीज भाई हमारे मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र में घुला जा रहा था और ये भाई था कि अपने मोहसिन मामू की बेटी रबिया तक को बेवकूफ़ बनाकर लौटने के चक्रों में रहता था। हालांकि एक लिहाज से वो इसके लिए बहन जैसी थी कि इस माँ ने रमीज को बेटे की मानंद पाला था। हम तो इन दोनों को भाई और बहन जानते थे, मालूम नहीं कि उनकी आपस में मोहब्बत किस नहज की थी। एक रोज मैंने फोन पर भाई की गुफ्तगू सुन ली। वो रबिया से कह रहा था कि तुम अपनी माँ की अलमारी से 50,000 रुपए किसी बहाने से उड़ा लाए, मुझे सख्त जरूरत है। देखो अगर तुम रकम लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे राजों के सबूत सबको दिखा दूंगा। मुझे अपने कानों पर एतबार ना आया कि मेरा भाई ऐसी गिरी हुई बातें कर सकता है। इसे रबिया से मोहब्बत थी तब भी और नहीं थी तब भी, वो इसके मामू की बेटी तो थी। रमीज को ऐसी बात न कहनी चाहिए थी। नहीं जानती थी कि रह के रमीज के पास ऐसे क्या सबूत हैं जिनको जाहिर करने की वो धमकी दे रहा था। ताहम कोई ऐसी बात थी जरूर कि जब वो शाम को पार्क से लूटा तो उसने कोई चीज अपनी अलमारी में रखी। थोड़ी देर बाद वो बाहर चला गया। मैंने छोटी मेज अलमारी के पास रखी और ऊपर चढ़कर देखा, चाबियां अलमारी की छत पर रखी हुई थी। रमीज की आदत थी कि वो चाबियां अलमारी पर डाल दिया करता था। हम में से कोई भी चाबी उठाता और ना उसकी अलमारी को खोलता था। आज हसब आदत उसने यही किया, लेकिन मैं फोन पर उसकी रबिया से गुफ्तगू सुन चुकी थी, लिहाजा उसके जाते ही चाबियां उठाकर अलमारी खोल ली, ये देखने के लिए कि इसने क्या शय अलमारी में छुपाई है। जब सैफ को खोला तो एक पोटली मिल गई जिसमें कंगनों की जोड़ी थी। यह कीमती जड़ाव कंगन थे जिन्हें मैंने रबिया को पहने हुए देखा था। गोया खानदान की इज्जत को बदनामी से बचाने की खातिर इस बेचारी ने अपने कंगनों की कुर्बानी दी थी। अब तो और भी कुरेद लगी। ऐसी को नसरस है जिसके तश्त अज़बाम होने से वो डर रही है। वो इसकी तरफ से लिखे हुए मोहब्बत नामे हो सकते हैं।
लेकिन दोनों एक घर में रहते थे। उनको मोहब्बत नामे लिखने और खतों किताबत करने की जरूरत ना थी। ये सवाल मेरे दिल में सांप की तरह पलने लगा, जो हर लम्हा मुझे डसता रहता। जब रबिया को देखती वो पहले से ज्यादा परेशान दिखाई देती। रफ्ता रफ्ता वो सर झुकाए हुए सरसों का फूल हो गई। अब मुझे अपने भाई से नफरत और रबिया से हमदर्दी महसूस होने लगी। जब मामू के घर जाती इससे यही सवाल करती, रबिया सच बताओ तुझे क्या गम लगा है, क्यों अंदर अंदर मरी जाती हो? वो कहती कुछ नहीं है, कोई गम तो है जो तुमको दीमक की तरह चाट रहा है। अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहती हो तो बता दो, इस अमर में कोई मुश्किल तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो टाल जाती थी। असल मसला तो शादी और मोहब्बत का नहीं, खौफ का था। रमीज ने पहले इससे मोहब्बत का खेल खेला और अगलब था कि दोनों की शादी हो जाती। मामू मुमानी भी यही चाह रहे थे, लेकिन मामू पर रफ्ता रफ्ता भेद खुलने लगे कि रमीज न सिर्फ शराब पीने लगा है बल्कि इसके मरासिम गलत औरतों से हैं। वो आवारा दोस्तों के साथ गलत किस्म की जगहों पर जाने लगा था। मामू ने पहले प्यार से समझाया, फिर सख्ती से रोका, यहाँ तक कि जेब खर्च बंद कर दिया और गाड़ी भी अपनी तहवील में ले ली। तंबी की कि पहले कुछ काम काज करो तो ही कुछ मिलेगा। उन्होंने एक दोस्त से बात करके फर्म में मुलाजमत भी दिलवा दी, लेकिन रमीज ने सुधर सका बल्कि मामू से झगड़ कर हमारे घर आ गया और मुलाजमत से इनकार कर दिया। मामू की शराफत के उन्होंने उम्मी अबू से रमीज की शिकायत न की और खामोश हो रहे कि शायद ये सुधर जाए तो अपनी बेटी इसी से ब्याह देंगे। रमीज सुधरने वालों में से न था। मामू के एहसानात का एहसास करने की बजाय उसने और ज्यादा बिगाड़ पैदा कर दिया। वो उनके साथ बदतमीजी से गुरेज न करता। अम्मी अबू ने रोका, उनके मुंह को आने लगा और घर में चीखने चलाने को मामूल बना लिया। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि रुपया खसवट्टू और ऐश करो। बेचारी रबिया की यही खता थी कि वो रमीज से प्यार करती थी। इससे हमारी नानी ने यकीन दिलाया था कि रमीज की दुल्हन रबिया होगी और जो कुछ दौलत व सरमाया नाना और मामू का है वो रमीज और रबिया दोनों का है। अम्मी अब पछताती थी कि क्यों रमीज को नानी की गोद में दिया था। दौलत इनको इत्तेफाकिया हाथ लगी। दौलत ने रमीज को बिगाड़ दिया और अब वो ऐश व आराम का ऐसा आदी हो गया कि तंगी तुर्शी को कबूल ही नहीं करता था। काश कि अपने घर की गुर्बत में पलता तो ऐसा ना बिगड़ता। मैंने ठान ली कि रबिया का राज जान कर रहूंगी और इसे खौफ से निजात दिलवाओगी कि जिस खौफ से वो मरी जाती थी लेकिन किसी को कुछ ना बताती थी। इसी टोह में एक रोज मैंने दोबारा भाई की अलमारी की चाबियां चुरा ले, जबकि वो घर ना था और करीबी बाजार से उन चाबियों की डुप्लीकेट बनवा लाए। अब मैं मौका की तलाश में थी कि किसी दिन रमीज किसी दूसरे शहर जाए तो मैं अच्छी तरह इसकी अलमारी की तलाशी ले सकूं। ये मौका भी मिल गया। एक दोस्त की शादी में 2 दिन के लिए वो लाहौर गया। तब रात को जबकि सब सुवर है थे, मैंने उसकी अलमारी खोली और खूब अच्छी तरह तलाशी ली तो अलमारी की तिजोरी से मुझे कुछ काबिल एतराज तस्वीर मिल गई। ये 5 मुख्तलिफ लड़कियों की थी और इनमें एक रबिया भी थी जिसकी चंद तस्वीर भाई के हमरा गलत अंदाज की थी। लगता था कि उसे धोखे में रख कर ये तस्वीर ली गई हैं। मुझे इल्म हो गया कि रमीज और रबिया आपस में किस दर्जा करीब थे।
अगर तस्वीर खानदान के कुछ लोगों को दिखा दी जाती तो मामू और मुमानी के लिए मरने का मकाम था। सोचा कि अपने इस घटिया भाई को इसकी हरकतों से रोकना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने खानदान की उन लड़कियों की इज्जत बचाने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। यही फैसले का लम्हा था तो रमीज से डर कर ये काबिल एतराज फोटो वापस इसी जगह रख देती और फिर उनको तलफ कर डालती। मैंने सभी लड़कियों के सारे मोहब्बत नामे और काबिल एतराज तस्वीर उठा ले और अलमारी के सेफ को चाबी से बंद करके अलमारी लॉक कर दी। मैंने उम्मी को ये सब फोटो और खत दे दिए और कहा कि आप ही उनको तलफ कर दें। उम्मी ने अजीज भाई से तज़किरा किया तो हम सब ने मिलकर यही फैसला किया कि उन सारे सबूतों को जौरमेज ने महज ब्लैकमेल करके लड़कियों से रकम बटोरने के लिए इकट्ठे कर रखे थे, तलफ कर देंगे। चाहे वो जो हंगामा करे, लेकिन किसी की इज्जत को यूं हम नीलाम ना होने देंगे। अम्मी ने ये फोटो और खतूत जिनकी वजह से खानदान की लड़कियां उसके हाथों में हकीर खिलौने बन चुकी थी, आग में जला दिए। जब रमीज हैदराबाद से लूटा, 3 रोज बाद उसे इल्म हुआ कि उसकी तिजोरी किसी ने खोली है और वो सारे सबूत उठा लिए हैं जो इसकी बदनीयती का शाखसाना थे। बस फिर क्या था, वो चीखने चलाने और घर की कीमती अशिया तोड़ने लगा। इसका एक ही सवाल था, मेरी अलमारी को किसने खोला? मुझे बता दो वरना घर को आग लगा दूंगा। अबू बीमार थे और वो अस्पताल में दाखिल थे। उम्मी वैसे ही सख्त परेशान थी। वो क्या जवाब देती और कैसे बताती कि तुम्हारी बहन मीना ने अलमारी खोलकर ये बेहुदा चीजें निकाली हैं। हुदा जब उन्होंने रमीज के बहुत शोर मचाने के बावजूद लब न खोले और मेरा नाम जुबान पर नहीं लाई तो अजीज ने हिम्मत की और कहा, रमीज खामोश हो जाओ और अपनी बकवास बंद कर, दूर ना में ही तुमको और तुम्हारे गलत इरादों को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। तुम्हारी अलमारी मैंने खोली थी, वो बेहुदा तस्वीर और खतूत आग में जलाए हैं ताकि तुम शरीफ घरानों की इज्जतों को ब्लैकमेल करके किसी की जिंदगी को अजीरन ना बना सको। ये तो मैंने कर दिया है, अब जो तुम करना चाहते हो कर दो। ये सुना था कि रमीज ये कहकर पांव पटखता घर से चला गया। तुम मुझे क्या देखोगे, मैं ही तुमको देखूंगा, ऐसा सबक दूंगा कि आदर है। इस वाक़े के 6 माह तक रमीज घर ना लूटा। अब उम्मी रोती थी कि हाय ये क्या हो गया, मेरा जवान बेटा न जाने कहाँ गायब हो गया, कहीं उसने खुदकशी ना कर ली हो। इस पर अजीज भाई ने कहा, उम्मी अच्छा है ये नन खानदान खुदकशी कर ले, कम अज कम ऐसे बुरे अफाल से तो मजीद बीच रहेगा और कई दूसरी लड़कियां भी इस मूजी के जहर से बच जाएंगी। रमीज ने खुदकशी ना की, लेकिन हम सबको खून के आंसू लाकर चला गया। इसके दिल में अपने ही सगे भाई के लिए इंतकाम की न बुझने वाली आग भड़क गई थी। एक रोज जबकि अजीज रिस्क हलाल की तलाश में गया हुआ था, न जाने कैसे इसे कुछ गुंडों ने घेर लिया और इस पर हाकियों से टूट पड़े। 20 मिनट के अंदर अंदर उसकी हड्डी पसली एक करके फरार हो गए। मेरा प्यारा और हसास भाई अजीज अस्पताल तक जाते जाते चंद सांसें लेकर अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन रमीज फिर कभी घर वापस ना आया। एक दिन अखबार में इसके बारे में खबर आ गई कि वो किसी डकैती के इल्जाम में पुलिस मुकाबले में मारा गया है। यूं मुफ्त की दौलत जो नाना के हाथ लगी थी, इसने हमको तबाह बर्बाद कर दिया। काश कि इनको ये दौलत ना मिलती तो आज हम सुकून की जिंदगी जी रहे